Om Namah Shivaya, people. So, good evening, good afternoon, good night, whatever it's going on for you. So, it's a very interesting reading. So, let's see. Ki, should you approach them or should they approach you? Okay? Should I do piles? I was thinking about should I do piles. Wait a sec. Alright. So, if it's pile 1, choose this. It's a scrunchie, right? And if it's pile 2, choose this. It's an earring, see? Is it visible? I feel like an influencer. Right? It's pile 1 or pile 2. Alright. I hope कि अब तक तुमने चूज़ कर लिया होगा. So, देखते हैं. सबसे पहले it's obviously pile 1 and I'm gonna do their current feeling. So they're gonna be, because it's 2 piles, so accordingly we're gonna do. If it's pile 1 for यार ठीक है, तो सबसे पहले also कि तुम्हारे से रीडिंग रेजोनेट हो रही है, so इसलिए let's see what are their current feelings or what's going around them around this time. अभी तुम्हारे क्या चल रहा है, कैसे है, ठीक है. Yeah, so okay, so पहले देखें कि एनर्जी क्या है and then we're gonna do कि should you approach them or should you let them approach you, ठीक है. Alright, so current energies of pile 1. Current energies, alright. Okay. अच्छा, आई थिंक यू ऑलरेडी आर, तुम पहले ही कोशिश कर रहे हो अप्रोच करने की एंड यू आर ऑलरेडी लाइक आई शुड अप्रोच दम, ठीक है. सो दैट इज़ योर एनर्जी. अभी तुम ऑलरेडी सोचो आई थिंक आई शुड अप्रोच दम एंड यू आर वर्किंग ऑन इट. राइट, वाओ. एंड यू रियली वॉन्ट टू अप्रोच दम, ठीक है. तुम्हारा बहुत मन है उनको अप्रोच करने, क्योंकि यू डोंट वॉन्ट टू लेट दिस गो. यू रियली वर्किंग ऑन इट एंड कहीं ना कहीं तुम रात को भी परेशान हो, यार मैं कर दूँ क्या, या मैं अप्रोच कर लूँ क्या. This could be a person or an opportunity. This is person. No, this is a person. I'm talking about a person. Opportunity नहीं है ये. It's a person. Obviously, opportunity को तुम्हें approach करना पड़ेगा. What was the sense of it? ठीक है. Okay. All right. So ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में है. Alright. जिस ग्रुप में तुम हैंग आउट करते हो उसमें 3 aces. 3 aces. 3 aces. Like, are you kidding me? यार. Okay. You, whoever you are, you're very straightforward. बहुत straightforward हो. And you are like, if I want something, I want it, I'll work for it, loud and proud, ठीक है. You are that type of person. छुपा के कुछ करना, सीक्रेसी में कुछ ज़्यादा वो रखना, you are not into that. You are not into कि मतलब तो मेरे पार्टनर को किसी को बताना मत. You more like, you are my partner, I'm gonna brag about you, ठीक है. ठीक है. This is nice. Alright. Because you also think, तुम्हें ऐसा भी लगता है कि उनके आसपास ना जो भी तुम्हारे पर्सन है उसके पास बहुत कंपटीशन है. There is quite a competition around them, ठीक है. And you're like that. और तुम नहीं चाहते कि if this is your person, right, this is your exact person, you don't want कि मतलब उन्हें कोई और प्रपोज कर ले, किसी और को हाँ बोल दे, obviously. So that is your current energy. And yes, exactly. See, you don't want कि उनको कोई और मिल जाए, किसी और को वो हाँ बोल दें या ऐसा कुछ. You don't want that at all. You're like, no. इसलिए तुम अभी, इसलिए तुम चाहते भी हो उनको अप्रोच करना किसी, क्योंकि तुम फ्रेंड ग्रुप में भी हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में या फिर आउट ऑफ योर फ्रेंड ग्रुप समवन लाइक्स देम,
ठीक है, और तुम्हें ऐसा लगता भी है और ऐसा है भी. दे हैव दिस कॉम्पिटिशन, नो यू हैव दिस कॉम्पिटिशन, क्योंकि तुम अप्रोच करना चाहते हो. दे हैव दिस कॉम्पिटिशन अराउंड देम गोइंग ऑन, कि मतलब who will win this person's heart. I think that's okay. I just want to check a little bit of on their energy कि उनकी energy क्या है. So you know, just to be clear, just to be sure, what's their energy? What does this person like? My collectives person. Oh my god. In, oh my god. All right. So calm down. You're a reader. Calm down. ठीक है. What is the energy of this person like? Huh. I think this person is very calm. No, not calm. No, that's not it. Okay. This person is grounded. Okay. Even if they're enjoying, cheering, कुछ भी है, मजे कर रहे हैं, पार्टी है, कुछ भी, anything, this person is grounded to reality. They know what the hell is actually happening and they're not like कि मतलब हवा हवा में है ना, कि मतलब अगर पार्टी हो रही है तो सिर्फ पार्टी में ही है. they're actually quite of an grounded person. बहते नहीं है वो चीज़ों में, right? Their awareness is still there. Even they're enjoying and everything, the awareness is not going anywhere. ठीक है. And this person's well off. अच्छा खासा financially this person is, you know, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है. और आई थिंक या तो बहुत ही रिच फैमिली से आते हैं, रिच लाइक वेल्दी, रिच, अच्छा खासा एफ्लुएंट दे आर. ठीक है. Also, this person is doing something really different than their family or something that's different. अलग है कुछ. ठीक है. एंड आज को इस बंदे का जो भी है, लड़का लड़की, बट द मूड इज नॉट वेरी नाइस. आजकल वो तुम्हें देखेंगे थोड़े अकेले, थोड़े शांत, थोड़ा अपने अपने में ही ज़्यादा. इट्स नॉट वेरी चेयरफुल. इट्स नॉट वेरी चेयरफुल. अभी करंट एनर्जी सी, द करंट एनर्जी इज लाइक दैट. द करंट एनर्जी इज़ वेरी नॉट गुड. मतलब बहुत बंधी हुई, कैसे कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ों में अभी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि उनका थोड़ा मूड ऑफ है. एंड इट्स उनका थोड़ा मूड ख़राब रहता है किसी चीज़ को लेके. वो किसी चॉइस में फंसे हुए हैं. उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं रिसेंटली उसका कुछ चल रहा है अभी उससे रिलेटेड. एंड देखते हैं हाउ दे फील अबाउट यू थोड़ा सा. Okay, cute. Oh. Huh? Did you hurt them? Okay. Something happened between you and this person. Propose कर दिया क्या तुमने already? इसलिए इसके कार्ड आ रहे थे क्या? Okay. So maybe you propose this person. ठीक है. एंड क्या हुआ फिर? इन्होंने तुम्हें कुछ बोला, इनका कुछ जो बिहेवियर था, एक्शंस थे, वो कुछ ऐसे होंगे जो जिससे तुम हर्ट हुए, तो इनको रिग्रेट तो हो रहा है उसका. दे आर रिग्रेटफुल कि वट एवर दे डिड एंड सेड, दे डिड नॉट लाइक इट. एंड ये जो तुमने प्रपोज किया, दिस वॉज सच अ टर्निंग पॉइंट फॉर दैम, राइट? And this person is actually hurt about this. What is going on? Okay, this person is hurt
एंड दे लाइक आई डोंट नो सम, मगर समथिंग हैपेंड बिटवीन यू टू, ठीक है, कुछ रिसेंटली हुआ है. एंड इन दिस they are literally they don't want you to be perfect, they just want you to be true, to be yourself, to lay out your feelings towards them, but also they're very cautious of you because you know, okay, so there's something that you said or that happened between you two that just broke their heart, so they're questioning it, like why did you act like that. That is why they're isolating. All right, that is why they're isolating. इसलिए वो अकेले अकेले हैं अभी, इसलिए उनका मूड ऑफ है. ठीक है, देखते हैं. Oh, please give me some. Oh, thank you. Okay. Okay, that's a long one. They really. Did you? They think you cheat on them. Why did you make them feel like that you cheat on them? Or something कि मतलब तुम्हारी लाइफ में कोई और है? Oh my god. What is? Oh, this is the whole story. So this is the separation phase for you both. Okay. You are looking for if you should, you know, mend this. तुम्हें पहले सॉरी जाके बोलना चाहिए या फिर उनको आना चाहिए. You're looking for that, huh? Okay. They think that you cheat on them or you are involved with someone else, or you know, they have misunderstandings about you. It's either misunderstandings or this is what they think or this is what you've done. I don't know, but this is what is going on. They are questioning it and they're very sad, they're isolating, they're thinking like, why did you do that? I loved you so much, why did you break my heart? Why did you break their heart? Abhi, if this is a misunderstanding, clear it out. You can approach them, absolutely you should. Revitalize, they want to revitalize this, they want this to happen. Your presence makes my day, come closer, go closer to them. They're very cautious now actually, but they're very cautious, like they're scared. Everyone is scared of their heartbroken these days anyways, but it's better. They really think like this is very precious. ठीक है, योर रिलेशनशिप वगैरह बहुत प्रेशियस है, बहुत प्यारी चीज़ थी ये, लेकिन जो भी हुआ है ना, मेरे को अच्छा नहीं हुआ. So let's see what you should do now. ठीक है, okay, let's see what you should do. Yeah, they're questioning your loyalty, you know. Are you cheating on them? Don't hide things from them. Don't hide things from them. Don't. Why are you hiding things from them? Why are you hiding things from this person? There's something about hiding and suddenly there was a phase in your relationship. What should you do now? What you should do? You should go and reconcile. तुम्हें उनसे जाके बात करनी पड़ेगी. ज़्यादा दिमाग मत चलाओ अपना. तुम छुपा क्यों रहे हो उनसे चीज़ें? लाइक दिस इज़ रॉन्ग. इट्स बेटर. देखो, यू कैन नॉट अवॉइड फेट, मगर तुम क्या कर सकते हो? तुम अपनी बातें क्लियर रख सकते हो, तुम अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हो सामने एक दूसरे के. तुम चीज़ों को क्लियर अप कर सकते हो और तुम बातें एक दूसरे साफ कर सकते हो क्लियरली, शांत होके, और प्यार से बात कर सकते हो, अच्छे से प्यार से बात कर सकते हो. दिस इज़ व्हाट यू कैन डू. ठीक है, जो होना है वो होगा, बट यू नीड टू गिव योर बेस्ट इन व्हाटएवर यू डूइंग. You need to quietly calm them down. They're hurt. This person is hurt. Quietly calm them down. This is what's coming. तुम्हें अप्रोच करना पड़ेगा. Yes, you should. And how should you approach it? Okay, just for your sake, I'll pull the cards. Okay. The approach should be positive or shant, you know, calm. They're very hurt. They will get defensive. They will, you know, say things. You don't have to get defensive. Don't get defensive. अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे डिफेंसिव होने का कोई मतलब नहीं बनता है. Okay.
डोंट गेट डिफेंसिव। 4 लोगों से बात करके मत जाओ, अपने आप से बात करो कि तुमने क्या गलत किया है, तुमने क्या गलत स्टेप लिया, एंड देन यू नीड टू गो एंड टॉक। दैट्स हाउ इट शुड बी। See, you don't need to get, there's no need to get defensive. You should be very open with them, ठीक है? बहुत openly, बहुत प्यार से, बहुत calmly, positive outlook के साथ बात करनी है। तुम्हें ऐसा मान के चलना है, this relationship is gonna work out, this relationship is it. You know, don't rely on relationship, but act like it. If you're in a relationship, give it all. Alright? Don't hide things, don't चालाकियाँ मत दिखाओ. This is what's coming. फालतू का दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्यार से बात करोगे, it's gonna be great. ठीक है? Yeah. So because this person is already well off, you don't have to think about like क्या है, क्या से रहेगा, क्या रहेगा. This is also a person. ये भी person ही है, इंसान ही है. ठीक है? जो तो this is how you have to do it. ठीक है? Okay, let's just fill out one guidance card for you. जब मैं रीडिंग निकालने बैठी हूँ ना तभी all noise come together. Okay, a guidance. My God, let's fill out guidance for you. 2 cards, 2 cards. Potential. Breaking old patterns. Keep the faith. ठीक है? क्या है? This potential. ठीक है? I want you to read this card. वैसे आलस आजकल बहुत बढ़ रहा है cause instant gratification, but the 2 cards. Alright. What I still read. Potential, opportunity, adventure, dreams, courage and future goals. ये कार्ड तुम्हें याद रहता है कि तुम्हारा जो पोटेंशियल है लाइफ में, ठीक है, बट जो तुम्हारे एंजल्स हैं तो हम सपोर्ट कर रही हैं. इट्स टाइम टू एम्ब्रेस द अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी कौन सी? जो ये तुम्हें रिलेशनशिप बेटर बना रहा है तुमको, दैट अपॉर्चुनिटी. ठीक है? इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू फॉलो हार्ड टुवर्ड्स द फ्यूचर. अपने गोल्स को और एस्पिरेशंस को रिस्पेक्ट करो. गोल्स और एस्पिरेशन. अभी तुम क्योंकि लव रीडिंग है तो अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करो. रिस्पेक्ट दैट पर्सन. डोंट डिसरिस्पेक्ट दिस पर्सन. डू नॉट टेक योर पर्सन फॉर ग्रांटेड. ग्रांटेड में मत लो किसी को भी. नो नीड. सब इम्पॉर्टेंट होता है सब, वरना सबको ऐसा फील होता है कि फॉर ग्रांटेड लेना मतलब तुम उस बंदे को अभी तक केयर नहीं कर रहे हो. तो ग्रांट कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लो. नहीं, कोई जरूरत नहीं है. अभी तुम्हारे पास कौन सी नई अपॉर्चुनिटी है और तुम उनसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कैसे प्लान कर सकते हो. ये तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हें अपने आप से पूछने हैं. अपॉर्चुनिटी क्या है? इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है. अभी तुम्हें जो डाउन फेज आया ना इस तुम्हारे रिलेशनशिप में, ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन डू. ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स. तुम्हें कुछ पुरानी पैटर्न्स है जो तुम्हें चेंज करने की जरूरत है. पैटर्न्स, रिफ्लेक्शन, चेंज, ग्रोथ, माइंडसेट एंड साइकिल. जो तुम्हारा माइंडसेट है वो तुम्हें चेंज करने की ज़रूरत है. अपना ग्रोथ के लिए चेंजेस लाने की ज़रूरत है. इस रिलेशनशिप के लिए तुम्हें अपने बहुत चेंज करने पड़ेंगे. एंड दिस इज व्हाट दिस रिलेशन केम फ्रॉम फॉर. दिस रीडिंग इज़ नॉट अबाउट कि ये रिलेशन कितना चलेगा, कितना है, भी है, नहीं है, कैसा है. नहीं, दिस रीडिंग इज़ अबाउट कि अभी तुम्हें क्या करना चाहिए. राइट? जहाँ पे हो रुको, रिफ्लेक्ट करो. कुछ भी करने से पहले उस चीज़ को सोचो. और ये सोचना कि क्या तुम अपने को इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट कर रहे हो. क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कुछ कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम दूसरों को गुस्सा निकाल रहे हो, और गुस्सा आते क्यों आ रहा है. सब कुछ यू नीड टू थिंक बिफोर डूइंग. ठीक है? टेकिंग एक्शंस. अगर तुम बहुत ज़्यादा भी इस चीज़ में हो तभी तुम्हें एक बार सोचना है पहले कि मैं क्या कर रहा हूँ. जो भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या बेनिफिट है सबका. और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में, नेगेटिव चीज़ों में स्टक होना अवॉइड करना है. ठीक है? अपनी लाइफ चॉइसेस तुम्हारे सोल पर्पस के हिसाब से लेनी है. जो अभी तुमने चॉइसेस ली हैं, ठीक है,
स्वार्थ के उससे मत करना कोई चीज़, ठीक है? You need to align with your soul purpose and then keep the faith. No matter how tough things get, remember that hope always exists. तुम्हारे angels में guide कर रही हैं through this challenges, तो don't lose the hope, ठीक है? Questions हैं, अभी तुम्हारी लाइफ में challenges हैं, उनके लिए मैं और फेथ और ट्रस्ट अपने अंदर कैसे लगा सकता हूँ, और अपने आप को नर्चर कैसे कर सकता हूँ, होप कैसे नर्चर कर सकता हूँ, और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कैसे और ज़्यादा होप मैं अपने अंदर कल्टिवेट कर सकता हूँ. दैट इज़ इट. और तुम्हें क्या करना है, राइट डाउन थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे. 3 चीज़ें जिसके तुम ग्रेटफुल हो. कोई चैलेंज है दिमाग में, उसको भी लिखो, ठीक है? सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल 1. एंड फॉर पाइल 2 नाउ you chose this little earring. I love this one actually. This is really pretty. Yeah. So, oh, it broke. It just broke. Okay. Are you inconsistent with this person? Let's connect with pile 2. योर लाइफ देखने में बड़ी प्यारी है, ठीक है? तुम्हारी लाइफ देखने में या फिर किसी और को देखने में बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि नो वन नोज द इनकन्सिस्टेंसी इन योर लाइफ, ठीक है? क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़ ज़्यादा है, वो किसी को नहीं पता है. तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है सिर्फ तुम्हें पता रहता है. या फिर यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन जो बाहर से तो बहुत शाइनी ग्लोई है, बट अंदर से देयर इज समथिंग लैकिंग जो तुम्हें फील होता है, लेट्स अ void, ठीक है? चलो, लेट्स सी, शुड यू अप्रोच दिस पर्सन, है ना? लेट्स सी हाउ डू दिखता है, क्या चल रहा है, व्हाट इज अबाउट दिस पर्सन. लेट्स सी अबाउट यू एंड दिस पर्सन. ओके, अभी तुम्हें काफ़ी तुम्हारा जो रिलेशन है ना, अभी तो पॉजिटिव है. आई वांट से कि मतलब देखो, मैंने रीडिंग तो की थी कि अकॉर्डिंग टू व्हाट डू वी से, सिंगल्स के लिए मोस्टली, कि मतलब जो अप्रोच करना चाहते हैं किसी को. बट जो पाइल 2 की रीडिंग आई है, इट्स फॉर द पीपल जो रिलेशनशिप में है या कुछ अप डाउन चल रहा है रिलेशनशिप में, ऐसी रीडिंग आ गई है. एंड मे बी जिनके लिए वो रीडिंग होगी ना, चाहे वो सिंगल हो चाहे ना हो, जिनके लिए वो होगी, इट गोना रेजोनेट. I hope it does. I really want my readings to help people. ये relationship, okay. तुम एक दूसरे को जानते हो, काफ़ी अच्छे से जानते हो. ऐसा हो सकता है कि तुम काफ़ी टाइम से साथ हो, इधर इट्स रियली लॉन्ग जिस टाइम से तुम साथ हो, या फिर रिसेंट है बहुत, ठीक है? और ना तुम्हारे रिलेशन में कोल्ड हॉट चलता रहता है. मीन्स यू इधर गो लाइक रियली वार्म विद रियली नाइस, एंड सडनली बात ही नहीं होती है, ठीक है? एंड तुम ना किसी चीज़ की वजह से तुम साथ में ही रहते हो. तुम्हारा इंटरेक्शन होना ही होना होता है किसी चीज़ की वजह से. इट कुड बी अ वर्क, इट कुड बी स्कूल के बच्चे देख रहे हो. इट कुड बी स्कूल, इट कुड बी वर्क. टीचर हो सकते हो तुम, ठीक है? ये तुम्हें आना ही होता है साथ में. इवन इफ यू आर मैरिड, ऑब्वियसली मैरिड में तो साथ आना ही पड़ेगा, बट तुम्हारा इंटरेक्शन होता ही रहता है, ठीक है? तुम नहीं चाहते ना, तब भी होता है. तुम जब चाहते हो नहीं हो तब भी हो जाता है. और यू प्रे कि ना हो, और या फिर तुम कभी प्रे करते हो जाए. तो लाइक समथिंग अबाउट दिस, या फिर तुम ऐसा प्रे करते कि यार ये बंदा ना मेरे आसपास रहे, बंदी मेरे आसपास ही रहे, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड दिस पर्सन इज रियली डिफरेंट, ठीक है? तुम्हारे से ये बंदा काफ़ी डिफरेंट है, लाइक लिटरली है ना, जिस बात बदल दी बिल्कुल 180 डिग्री. एंड दिस रिलेशनशिप गॉट यू फीलिंग थिंग्स, और
This relationship, thing about this relationship is very different. I'm not talking कि relationship या love relationship है, but जो भी relationship like colleagues हो, friends हो, whatever, ठीक है? तो it's like very something like that. इस रिलेशनशिप में तो काफ़ी चेंज किया है, ठीक है? इट चेंज्ड यू अ लॉट. कुछ डिफरेंस आया है तुम्हारे अंदर, तुमने चीज़ों को एक अलग तरीके से देखना स्टार्ट किया है, और तुम्हें ना एक अब तुम्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पता चल रहे हैं लाइफ में. ओके, दिस इज़ नाइस. तुम इस पर्सन के साथ आके, इस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आके तुमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं इन अ डिफरेंट वे. इट्स वेरी समथिंग जो तुम्हारी ऑर्डिनरी वे से अलग थी, जो तुम करते थे उससे अलग था, ठीक है? यू लर्न ऑल दैट एंड तुमने इस चीज़, या इट हेल्प यू मूव ऑन टू समथिंग. इट हेल्प यू मूव. तुम्हारे करियर में है, तुम्हारा ऐसा कुछ है, आई एम डूइंग राइट, तुम्हारे करियर में ऐसा कुछ है. It's there's something about this chariot. I don't know. It's so. Hmm. There's something about starry nights. It's something about night, like रात, ठीक है? रात रिलेटेड कुछ है. तुमने रातों को जागना स्टार्ट कर दिया क्या? तुम रातों में जाग रहे हो, रात भर. तुम रात भर काम करते हो, ऐसा हो सकता है कि तुम रात भर काम करते हो, तुम्हें रात को जागना बहुत पसंद है. तुम्हारे पर्सपेक्टिव में बहुत चेंज आया है इस बंदे के साथ रह के. आई डोंट नो, कुछ चेंज आया है. तुमने कुछ चीज़ें लेट गो की है अपनी लाइफ से. तुमने कुछ यू जस्ट फाउंड योर पैशन, ठीक है? तुमको अपना पैशन मिल गया है लाइफ का. There's something. I think this person is really कोई ऐसा बंदा है जो पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, ठीक है? They change perspectives. They have so much. They have so much experience. You can learn from this person a lot. बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करता है. जैसे तुम्हें लगता है, जैसे तुमने सोचा नहीं था, इससे बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करता है. एंड यू लव दैट. यू एक्चुअली लाइक टू लर्न. यू एक्चुअली लाइक हाउ दे make you feel like, oh my god, there's a lot to learn. Okay, I like that. I shouldn't comment on this like that. But anyways, let's see how this person thinks of you. It looks like wood. Okay. This person actually really like when you spend time together, and they find it like really nice, fun. उनको बहुत अच्छा लगता है. I don't know why I'm speaking a lot in English today. कि उनको बहुत अच्छा लगता है जब तुम साथ में टाइम स्पेंड करते हो और ऐसा कुछ होता है. बट दे ऑल्सो रिग्रेट सम मोमेंट्स जहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया होगा या कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर दिए होंगे जो तुमको शायद हर्ट किए हो, या फिर उनका ऐसा लगता है कि तुम हर्ट किए होंगे और दे आर हर्टफुल. उनका ऐसा लगता है. एंड ओह माय गॉड, इस इंसान को ना लोग थोड़े कंट्रोल में पसंद है अपने. यार कि ओके, दिस पर्सन इज इट्स इची. या ठीक है. दिस पर्सन काइंड ऑफ लाइक्स टू कीप यू इन कंट्रोल, कि तुम उनके कंट्रोल में रहो. वो जिस तरीके से चीज़ें बनाए, लिमिट में करें, उस हिसाब से चीज़ें हों. बट ऑल्सो दे वॉन्ट यू कॉन्स्टेंटली इन योर लाइफ, ठीक है? वो चाहते हैं कि तुम कॉन्स्टेंटली उनकी लाइफ में रहो, तुम्हारी प्रेजेंस हो उनकी लाइफ में, राइट? सो कॉन्स्टेंट प्रेजेंस, ठीक है? और वो उन चीज़ों के लिए अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं. वो तुम्हारे पर स्पाई भी कर रहे हैं. स्पाई इन अ सेंस कि मतलब उनका रहता है कि मतलब ये बंदा क्या कर रहा है, व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ. देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन. इट्स काइंड ऑफ
not stalking, but spying and stalking is somewhat like same but also different. It's a line. Yeah. Which is both are wrong though. ठीक है, वो अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं इन चीज़ के बारे में कि मैं तुम्हें कंट्रोल करती हूँ और इट्स नॉट गुड, आई नो इट्स नॉट गुड, मगर दे कांट स्टॉप themselves from controlling you, right? I think there's a little insecurity. It could be insecurity because controlling की जो एक mentality आती है वो it roots from either insecurity or something or a disturbed lifestyle. Oh my god, right? So it's like that, and they're jealous. Yeah, see this card came out. See, they're jealous. They're jealous about things कि मतलब कुछ चीज़ तुम किसी और के साथ जाओ या ऐसा कुछ, तो इसलिए they're controlling it or spying because this jealousy roots from insecurity. ठीक है, तो it's not that it's bad, मगर इसके ऊपर बात करके इसको सुलझाया जा सकता है instead of controlling someone or doing things like that. Let's see if you should approach them or no. Should you approach them? This person not gonna approach you, to be honest. This person will not gonna approach you. क्योंकि ये जिस तरीके का पर्सन है, they're not gonna approach you themselves. उनको लगता भी नहीं है कि approaching is something like yeah, I should do an approach. To be honest, अभी जो cards आए हैं उनके हिसाब से you should be the judge of this क्योंकि it's your life. ठीक है, it's your life. You must take the decision. ठीक है, कि जैसे कि ये जो इंसान है ये जेलस है, जेलसी में वो करता है, इनसिक्योरिटी रूट होती है. लोगों को जेलसी बहुत ही एक प्यारी ट्रेड लगती है, विच इज़ नॉट प्यारी, क्योंकि जब एक लाइन क्रॉस हो जाती है ना जेलसी में भी, वो चीज़ एक बहुत बड़ी इशू बन जाता है. ठीक है, तो बेटर होगा अगर तुम इन फ्लटरी फीलिंग्स, देखो द बटरफ्लाइज, अगर तुम इन फ्लटरी फीलिंग्स में ना फंसो और अपने जजमेंट को क्लाउड मत करने देना इन सब चीज़ों से. स्टैंड ऑन रियलिटी, ग्राउंड टू रियलिटी. ठीक है, जेलसी इज़ नेवर अ ग्रेट ट्रेड, स्पेशली व्हेन इट्स सो हाई कि वो तुम्हारे पे स्पाई कर रहे हैं, बहुत कंट्रोलिंग है. दिस इज़ रॉन्ग. I won't tell you if you should stop or not, but I'll do tell you if it's negative or not, if it's gonna help you or no. Why? Acha, this person also gives you mixed feelings, mixed signals. Yeah, mixed signals बहुत देते हैं. कभी कभी लगता है oh my god I love me, और कभी लगता है यार ये बंदा मेरे से नफरत करता है क्या, है ना. So you like their outlook, the way they live their life, you admire them, you really admire them. That's what it's about. You admire them. ठीक है, and तुम्हें उनका बहुत पसंद है जिस तरीके से वो अपनी लाइफ जीते हैं. इट्स वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू नो, दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड. इट्स क्वाइट डिफरेंट. ठीक है, और तुम्हारे अंदर भी लाइक ऐसा चलता था कि शुड आई नॉट. दिस इज बिकॉज ऑफ द मिक्स सिग्नल्स, एंड समवन इज गिविंग यू मिक्स सिग्नल्स, यू शुड नॉट अप्रोच देम. That's the thing about it. If someone's giving you mixed signals, do not approach them. Do not go to them. It's not, क्योंकि if this person is constant, if अगर ये बंदा constant होता, इसलिए that okay, you know that earring, it was beautiful, but it had, उसका एक stone टूट गया. ठीक है, मुझे बहुत पसंद थी वो, but उसका एक stone टूट गया. तो अब उसका एक stone टूट गया, इसका क्या मतलब है? It's खोखली, there's a void, है ना. if you're connecting जो insecurities वगैरह हैं, it's almost this person is very admirable, very different तरीके से जीता है, बहुत प्यारी चीज़ें इसने की है. ठीक है, सब कुछ ये सब, बट ये जो मिक्स सिग्नल्स है ना, ये जो रैंडम बच्चों वाली हरकतें हैं ना, दैट टूटा हुआ स्टोन. ठीक है, इट्स मतलब ये प्रॉब्लम बनने वाली आगे. I'm just telling you कि if you approach them, ये प्रॉब्लम बनने वाली है आगे, ये आगे होना ही है, ये आगे तुम फेस करोगे ही. That is something inevitable. तुम इसको क्रॉस नहीं कर सकते चीज़ को, ये आएगी ही आड़े. ठीक है, तो
बताती हूँ, ईदर यू अप्रोच दिस पर्सन और नॉट, ठीक है, चाहे तुम उस बंदे को अप्रोच करो या ना करो, नहीं ना करने वाली बात तो नहीं है, ना करने में तो फिर ये चीज़ तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, मगर दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, तो इफ़ यू गोना अप्रोच दिस पर्सन, ठीक है, तो दिस ऑब्स्टेकल विल डेफिनेटली कम थ्रू, तुम्हारे पास ये आएगा ही, ठीक है। एंड व्हाट इज़ गोना बी अबाउट कि जेलसी एक इशू बन जाएगा, कंट्रोलिंग, अगर तुम्हें बहुत पसंद है बेड़ियों में रहना, चेन्स में रहना, तो वो बात अलग है, बट कंट्रोलिंग इशू, एंगर इश्यूज, ठीक है, मिक्स सिग्नल्स, ऑन एंड ऑफ, साइलेंट ट्रीटमेंट्स, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। एंड देयर वाज समथिंग आई जस्ट गॉट पोजेसिवनेस ओवर, हर चीज़ में ध्यान रखना, फ़ोन चेक करना, हर चीज़, ठीक है, that's what you're gonna face, let me tell you, that's what you're gonna face. So I'm just telling you, this is most probably a no, but if you still want to try, go ahead, you can, of course. I can't really stop you now, right? ये ऑब्स्टेकल आएगा ही, इफ़ यू गोना, दिस कार्ड दो बार आ गया, कि अगर तुम ये चीज़ करते हो तो ये ऑब्स्टेकल तुम्हारे सामने आएगा ही, ठीक है, इट्स ऑब्वियस, ये चीज़ आएगी ही तुम्हारे साथ, तो इसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि नाउ यू नो द नेचर ऑफ दिस पर्सन, you can now think it by yourself, but still I would suggest it as a no, ठीक है, do not really approach this person until unless this person approach you and you clear out things, तो ये स्मूथ नहीं होने वाला वरना, क्योंकि आगे जाके you can find someone else, ज़रूरी नहीं है कि दिस इज़ द ओनली पर्सन, अगर तुम्हें ऐसा कहीं भी लग रहा है कि नहीं ये रिलैक्स, 8 million, 8 or 9, 8 million people, billion, yeah, so लाइट आ गई so this person can be a hazard to your mental health. Let me pull out a guidance if you are still confused and all that. अगर तुम्हें लगता है चले इज रियली क्यूट ट्रेट, ओके, गाइडेंस पे कार्ड्स गिर रहे हैं पता नहीं क्यों। ओके, वी गॉट अ रियली ग्रेट रिमाइंडर, पोटेंशियल के पीछे मत भागो, ये पर्सन चेंज होके ऐसा हो सकता है, उसके पीछे मत भागो, स्टार्टिंग टाइम में ही अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखो, ठीक है, तुम्हें क्या प्रायोरिटीज़ है तुम्हारी, तुम क्या चाहते हो उस पर्सन में, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे, तुम्हारी लव लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पोटेंशियल के पीछे मत भागो, मैं इसको ये बना सकती हूँ, यू आर नॉट बॉब द बिल्डर, काम डाउन, रिलैक्स, यू नॉट द बॉब द बिल्डर, ठीक है, तुमने अपने आप को बिल्ड किया है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी और को बिल्ड करना, दे नॉट रोबोट्स, दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, इट्स देयर ओन जर्नी, ठीक है, until unless this person comes की प्लीज़ हेल्प मी, आई वांट चेंज, ब्ला 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 व्हाटएवर, ठीक है, उसमें भी तुम ज़्यादा एनर्जी मत दो, क्योंकि एक्सेसिव एनर्जी देना ये विल जस्ट बहुत खराब हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है, इट्स नॉट ग्रेट, बहुत नेगेटिविटी आती है। टेक चार्ज, एम्पावरमेंट, इनिशिएटिव, लीडरशिप, सेल्फ डिटर्मिनेशन, बोल्डनेस, इम्प्रूवमेंट, अपने ऊपर फोकस कर लो, वैसे तुम्हारे लिए अपनी लाइफ का कंट्रोल लो, और आगे बढ़ने के लिए उसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो अपने हाथ में लो, अपने डिज़ायर्ड आउटकम सी, तुम इस बंदे पे फंसो मत, तुम्हारे डिज़ायर्ड आउटकम्स तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चूज़ करते हो, तुम क्या चेंज करते हो, जो शॉर्टनेस है लाइफ की उसको एम्ब्रेस करो, और अपने एक्शंस उस चीज़ में लगाओ जहाँ पे तुम अपनी हेल्थ को, वेलबींग को बेटर कर सकते हो, पर्सनल ग्रोथ में। आई थिंक तुम्हारे लिए पर्सनल ग्रोथ का ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि तुमने ये जो जैसा बंदा है ना, ये कंट्रोलिंग एंड ऑल, तुम ऐसा बंदा अट्रैक्ट कर रहे हो, इट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ, जिससे तुम बेटर इंसान अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। व्हाट एरियाज ऑफ माई लाइफ, दिस इज अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, व्हाट एरियाज ऑफ माई लाइफ डू आई नीड टू टेक more control over, how can I make proactive changes to improve my situations, ठीक है, hope you understood that, ठीक है,
अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है तुम्हें, कहाँ तुम कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कहाँ तुम अपने सजेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हो अपनी लाइफ के कौन से एस्पेक्ट में। इट्स इम्पॉर्टेंट। अपने वो एरियाज आइडेंटिफाई करो जहाँ पे तुम पैसिव हो बहुत, तुम कॉन्शियसली स्टेप्स नहीं ले रहे थे, अब वहाँ पे तुम्हें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। खुद से स्टेप्स लो, असर्टिव स्टेप्स लो, माइंडफुल होके, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करो। क्लियर गोल्स बनाओ जहाँ तुम्हें चेंज लाने की ज़रूरत है और क्या तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, और उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करो। तुम अपने कंफर्ट जोन से तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी माइंड एनर्जी को कहीं और फोकस करने की ज़रूरत है तुम्हें। चैनल एनर्जी समवेयर एल्स टू फाइंड अ बेटर, प्रॉपर कंपैटिबल पार्टनर, ठीक है। स्टार्ट विद अ कंपैटिबल पार्टनर, सो कंपैटिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। स्टार्ट विद अ कंपैटिबल पार्टनर। Okay, so that was a reading. Thank you so much for watching. Okay, bye. Hope everything happens great in your life. Take great decisions. Don't just jump into something. Okay. Okay, bye. Oh no, Shivai.